This conference will now be recorded. Okay, so good evening to all. Myself Samadhan Patil, and today we are going to discuss about the particular solution of the nth order linear differential equation. Yesterday we have talked about what is the complementary function, and we have seen variety of example to understand that concept. Okay, and one more example I have given to you to solve that. Hope you have practiced at home, okay, and you just clearly understand all that things. Okay, if you have any doubt in that previous concept, you just please ask. Okay, Akshada, if you have any doubt, then you can ask me in the previous concept. Otherwise, we'll move to the next. Okay, so particular integral actually it is the second part of the solution of nth order linear differential equation. Okay, so now here if we consider the complement if we consider the nth order linear differential equation with constant coefficient in the form of operator d, consider this, it is phi of d into y is equal to fx. Okay, this is your nth order linear differential equation with constant coefficient in the form of operator d, where fx is a function of x and phi of d is nothing but the polynomial in d that we have seen earlier. And with the help of this phi of d, we have a complementary function. Okay, and we have seen the many examples regarding that also. ओके तो आज हम क्या करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन देखो हमारा, हमने देखा कि कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो ये तो हमने देखा अभी पिछले लेक्चर में भी, पिछले दो लेक्चर से ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूरा कंप्लीट किया हमने। तो अभी आज के लेक्चर से हम ये देखने वाले कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है, पी आई वाई पी कैसे फाइंड करना है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल विद द हेल्प ऑफ द गिवन इक्वेशन और विद द हेल्प ऑफ द गिवन फंक्शन, एंड इट इज एक्चुअली इन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो अभी ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, देखो ये फाई ऑफ डी हमको इसका रेसिप्रोकल मीन्स यहाँ पे शिफ्ट करना है, वी आर इंटरेस्टेड इन y, so here we can write this can be implies yp is equal to ये phi of d जो है यहाँ पे y को मल्टीप्लाई में, so if we shift into this side it become in the denominator, so 1 upon phi of d into fx। ओके ये जो है ये आपका हो गया, जो इक्वेशन मिल रहा है आपको, दैट विल बी यूजफुल, दैट विल बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर इंटीग्रल। okay, and there are total, we have to just replace the value of phi of d and f of x, f of x और phi of d के ये दोनों के वैल्यू रिप्लेस करने हैं और सॉल्व करना है, एंड हाउ टू सॉल्व दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये कैसे सॉल्व करना है ये अभी हम चेक करेंगे वन बाय वन। so but there are total three methods to solve or to find out the particular integral, we will discuss them one by one, they are very simple and very important method to understand the concept of particular integral. Okay, so there are total three methods actually, there are three methods to find particular integral, okay, of the given equation, and your first method is shortcut method. Okay, second method that now we will learn, it is nothing but MVP, or it is also called as a method of variation of parameter. And third one is what, it is a general method. Okay, generally we are not using this, we are using only when these two methods are not applicable, general method। ये जो थर्ड मेथड है ये जनरली हम इसको ज्यादा जाएंगे नहीं, बिकॉज इट कंटेन्स द इंटीग्रल, इट इन्वॉल्व्स द इंटीग्रल। ओके, involves
इंटीग्रल्स, इसमें इंटीग्रेशंस होते हैं, तो ये ज्यादा हम प्रेफर नहीं करने वाले। ये दो जो मेथड्स है ये ज्यादा हम प्रेफर करने वाले, और ये इजी भी है बहुत इसके कंपैरिजन में। ऐसा नहीं है इजी नहीं है, ये थर्ड मेथड भी बहुत इजी है, but we will discuss about that, okay, in detail as we go uh, further for the further methods, okay। So first method अभी हम आज डिस्कस करने वाले, it is a shortcut method, okay। इसमें बहुत सारे केसेस आएंगे, ये केसेस स्टडी करके हमने क्या करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। So let us try to understand the all cases, okay। तो फिर से एक बार एलडी कंसीडर करो, कंसीडर फाई ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका एलडी हो गया, ओके। हमको y चाहिए, सो वाई पी इज इक्वल टू 1 फाई ऑफ डी इंटू एफ एक्स, ये फाई ऑफ डी डिनोमिनेटर में लेके आया मैं, ओके। नाउ हियर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एफ एक्स, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स आपका कैसा है, ये जो यहाँ पे है राइट हैंड साइड में, ये एक्सपोनेंशियल है या ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्राइक है, हाइपरबोलिक है, कांस्टेंट है, ओके। सो इस पे आपका जो है ये केस डिपेंड करता है कि आपको कैसा केस यूज करना है। लाइकवाइज प्रीवियसली सी वी हैव सीन अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वी हैव सीन 4 केसेस एंड दैट 4 केसेस आर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रूट्स और ऑक्सिलरी इक्वेशन, ओके। ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया हमने फाई ऑफ डी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स फाइंड किए, और उसके रूट्स कैसे मिलते हैं हमको, रियल डिस्टिंक्ट मिलते हैं, रियल रिपीटेड मिलते हैं, रियल कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, सॉरी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिपीटेड मिलते हैं। ये 4 केसेस हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए। सेम यहाँ पे क्या है, ये आपका एफ एक्स कैसा है, इट मे बी एक्सपोनेंशियल, इट मे बी ट्रिग्नोमेट्रिक, it may be algebraic, it may be hyperbolic, it may be constant, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होंगे आपके लिए, ओके। तो इसमें से आपके आपका जो एफ एक्स है, that fx belongs to which category, and depending on that nature of fx we have a different cases here। So depending on nature of fx we have several cases, we have several cases to find ei और yp। अभी देखते हैं 1 बाय 1 केसेस स्टडी करते हैं। देखो पहला केस जो मैं लेने जा रहा हूँ, इट इज वेरी सिंपल। केस 1, इफ योर fx इज ऑफ दिस फॉर्म e रेज टू ax, एक्सपोनेंशियल, a कुछ भी हो सकता है आपका, रियल नंबर हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, 4 5 1 by 2 4 by 5 whatever it is, okay। So we are not interested in that, it is a real number, a is real number, okay। तो अगर फंक्शन आपका ऐसा हुआ तो what should be the complement, what should be the particular integral, so your yp is simply what, then yp is equal to, देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको fx का वैल्यू e रेज टू x डालना है, fx क्योंकि आपका fx क्या है, e raised to x, okay। So just replace the value of fx as e raised to x, so it is simply what, 1 upon phi of d into e raised to ax। अभी ये आपका सेटअप हो गया, आपको अभी सॉल्व करना है। अभी देखो यहाँ पे डेरिवेटिव लेना नहीं है आपको, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना नहीं है, शॉर्टकट मेथड नाम ही इसका शॉर्टकट है, शॉर्टकट में हमको आंसर फाइंड करना है, ओके। सो हाउ will how we can find out the answer in the simplest way। देखो अगर आपका फंक्शन e raised to ax हुआ तो क्या करना है, just replace here, so what we have to do, replace d by a, जहां पे d है वहां पे आपको a रिप्लेस करना है, okay। So what is my answer then, so your yp is equal to what, it is 1 upon phi of a into e raised to ax, ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। phi of a, आपको phi of d पता है, phi of d में d का वैल्यू a डालो, phi of a मिल जाएगा, कैलकुलेट करो और फाइनली विल गेट द आंसर, ओके। प्रोवाइडेड दैट
दिस phi ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए ना। अगर ये जीरो हुआ तो हमको आगे जाना है, आगे जाके क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो ये तो हो गया, आंसर हो गया। अभी अगर phi ऑफ ए जीरो नहीं हुआ, if phi of a is not equal to zero, ये जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हुआ, क्या जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, that particular integral is not defined, because anything upon zero is infinity, you know that. Okay, so if this phi of a is zero, then the yp is not defined and it is not possible actually. Okay, so that's why phi of a should not be zero. Case of failure. Okay, अभी इसका एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, एंड देन हम देखेंगे कि केस अगर फेल हुआ तो क्या, केस फेल कब होगा, फाइव ऑफ ए जब जीरो हो जाएगा तब आपका केस फेल हो जाएगा। ओके, सो वी आर इंटरेस्टेड हियर इन व्हाट, फर्स्ट if phi of a is not equal to zero then what happen। okay, देखो मैं अभी एक इक्वेशन ले लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल देखते हैं हम एक, डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू ई रेज टू टू एक्स, ऐसा हो गया। ओके, तो अभी आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट नाउ, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ओके, जब हम सब कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे तब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करेंगे। तो फिलहाल हम पर्टिकुलर इंटीग्रल देखते हैं। सो yp इज व्हाट, योर yp इज सिंपली वन अपॉन फाइव ऑफ डी मीन्स डी स्क्वायर प्लस टू डी माइनस थ्री इंटू एफ एक्स मीन्स ई रेस टू टू एक्स, ये आपका एफ एक्स है अभी। ओके, तो आपको क्या करना है, केस क्या बोल रहा है, जहां पे फाइव ऑफ डी में डी है, डी के जगह पे आपको ए रिप्लेस करना है। गॉट इट। देखो अभी आपका ए क्या है यहाँ पे, सो योर ए इज नथिंग बट टू, सो रिप्लेस डी बाय टू। गॉट इट। सो अभी हम डी के जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, टू रिप्लेस करेंगे। तो देखो हमको क्या मिल रहा है, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन डी स्क्वायर मीन्स डी मीन्स टू है आपका, सो इट इज डी स्क्वायर प्लस टू इंटू डी मीन्स टू माइनस थ्री, ओके, इंटू ई रेस टू टू एक्स एज इट इज। देखो रिप्लेसमेंट मैंने ग्रीन कलर से किया है, जहां पे डी था मैंने टू रिप्लेस किया, वहां पे ए रिप्लेस किया। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन, it is 2 square is 4 plus 4 minus 3 into e raised to 2x. So this is equal to 4 plus 4 is 8, 8 minus 3 is 5. So 1 by 5 e raised to 2x. This is your yp. That's it. इतना ही करना है आपको yp फाइंड करने के लिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मिल गया हमको फाइव ऑफ टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, फाइव ऑफ टू का वैल्यू जीरो नहीं है अभी, वो फाइव है, इसलिए यहाँ पे केस फेल नहीं हुआ। गॉट इट, एनी डाउट, ये समझ में आया। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे अगर केस फेल होता है तो क्या होता है एग्जैक्टली। ओके, सो केस ऑफ फेल्यूर, केस कब फेल होता है देखो अभी, सो इफ फाइव ऑफ ए बिकम जीरो, अगर फाइव ऑफ ए का वैल्यू आपका जीरो हो गया तो केस फेल हो जाएगा। ओके, तो कैसे होगा देखो, अगर केस फेल हुआ तो क्या करना है, देन यूर yp इज फाइव ऑफ ए, अगर जीरो हुआ आपका तो yp क्या होगा, yp इज वन अपॉन फाइव ऑफ ए, सॉरी फाइव ऑफ डी इंटू इरेज टू एक्स है आपका। अभी यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, ये जो फाइव ऑफ ए है आपका ये जीरो हो गया, एम आई राइट। तो फाइव ऑफ ए अगर जीरो हो गया आपका, सो हियर फाइव ऑफ ए इज जीरो, देन क्या करना है आपको, yp इज इक्वल टू, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है फाइव ऑफ डी का, ये हो जाएगा फाइव डैश ऑफ डी। ओके, और डेरिवेटिव लेके
ये e रेस टू ax एज इट इज लिखना है, और यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया तो x ने मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये होने के बाद क्या करना है आपको, जहां पे d है वहां पे a रिप्लेस करना है। सो फाइनली व्हाट इज योर yp देन, yp इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय phi dash of a into e raised to ax, again provided that your phi dash of a is not equal to 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। ओके, डेरिवेटिव लेना है, x ने मल्टीप्लाई करना है और e रेस टू ax लिखना है एज इट इज। अगर फाई ऑफ ए 0 हो गया तो मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ, डोंट टेक अटेंशन सर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस। ओके, एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार अगर फिर से केस फेल हो गया, ओके, फिर से केस फेल हो गया मीन्स व्हाट, इफ अगेन फाई डैश ऑफ ए बिकम 0, देन व्हाट, देन देन आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा yp इज इक्वल टू, अभी दो बार डेरिवेटिव लेना है, फिर से डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये पहला डेरिवेटिव तो 0 हो गया। ओके, देखो पहला डेरिवेटिव क्यों लिया हमने, क्योंकि फाई ऑफ ए 0 हो गया था, वो 0 हो गया इसलिए डेरिवेटिव लिया, फिर से वो 0 हो गया, तो क्या करना है, अभी फिर से डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने फिर से डेरिवेटिव लिया, क्या है आपका फाई डैश, और डी के जगह पे ए रिप्लेस कर दो, अभी डबल डैश है इसलिए एक्स स्क्वायर ने मल्टीप्लाई करना है, ई रेस टू ए एक्स, और प्रोवाइडेड दैट फाई डबल डैश ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये फिर से 0 हो गया तो फिर से डेरिवेटिव लेना है, फिर से डेरिवेटिव में डी के जगह पे ए रिप्लेस करना है, और उस बार एक्स क्यूब ने मल्टीप्लाई करना है। आप जितनी बार डेरिवेटिव लेंगे उतनी बार आपको एक्स ने मल्टीप्लाई करना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अभी एग्जांपल देखते हैं, और उसके बाद अगर कुछ डाउट हुआ तो वो पूछना। ओके, सो लेट अस सी द एग्जांपल। So it is d square minus 2d plus 1 into y is equal to e raised to x। तो एग्जाम्पल है, तो yp क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो yp is equal to 1 upon d square minus 2d plus 1, राइट। ओके, ये phi of d लिख लिया, और यहाँ पे e raised to x। अभी केस क्या बोल रहा है मुझे, पहला केस कि a का वैल्यू जो है आपका 1 है, a इज इक्वल टू 1, और आपका फाई ऑफ d जो है वो है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1। अगर मैं d के जगह पे अगर 1 लेता हूँ, इफ आई रिप्लेस d बाय 1, ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो d फाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 2 इंटू 1, ओके, प्लस 1। सो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 1, और 1 माइनस 2 प्लस 1 मीन्स व्हाट, 0। तो यहाँ पे phi of 1 0 हो गया, देखो, मैं राइट। सो हियर phi of a is phi of 1, हियर phi of 1 is equal to 0, केस फेल हो गया। ओके, अगर केस फेल हुआ तो क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। सो yp इज इक्वल टू व्हाट, x ने मल्टीप्लाई करना है, डेरिवेटिव लेना है एक बार, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2d माइनस 2 एज इट इज, फिर से। ओके, ये डेरिवेटिव समझ में आ रहा है, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू व्हाट, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ये होता है। तो पावर, एक्चुअली व्हाट इज डी, डी इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स, ध्यान में रखो, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, और इसका अगर डेरिवेटिव लिया हमने तो ये मिलेगा 2d, तो आगे आ जाएगा। ओके, सो नथिंग टू बी वरी अबाउट दिस। ओके, इट इज वेरी सिंपल, जैसे आप एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव लेते हो वैसे इसका डेरिवेटिव लेना है आपको। अगर एक्स क्यूब हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लिखते हो, इट इज 2x। तो सिर्फ ऐसे ही करना है, डी डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर अगर होगा तो आपको 2d स्क्वायर लिखना है, 2d लिखना है। ओके, डी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3d स्क्वायर आ जाएगा आपका। okay, so these are a simple concept that you know from basic standard। okay, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अभी 2d आ जाएगा, मेरा 2d माइनस 2, क्योंकि d का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, देखो वैसे ही d का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 एज इट इज।
इंटू ई रेस टू एक्स। अभी देखो, अभी अगर पहली बार केस फेल हुआ तो हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, और जहां पे डी है वहां पे ए रिप्लेस करना है, रिप्लेस डी बाय ए। तो हमने डेरिवेटिव लिया अभी, आपका फाइव डैश ऑफ डी जो है, तो क्या मिल गया आपको, वो फाइव डैश ऑफ डी। देखो अभी फाइव डैश ऑफ डी मीन्स टू डी माइनस टू हियर, so phi dash of d is simply what, phi dash of d is equal to 2d minus d। तो a आपका क्या है, 1 है, तो रिप्लेस d बाय 1। d के जगह पे क्या रिप्लेस करना है, 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, phi dash of 1 is equal to 2 into 1 minus 1, sorry 2 is there, this is not d, this is 2। ओके, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 into, दिस इज 2 into 1 minus 2, सो 2 minus 2 फिर से 0 हो गया, देखो फिर से केस फेल हो गया। अगेन हियर व्हाट आई गेट हियर, phi dash of 2 is equal to 0, केस फिर से फेल हो गया यहाँ पे, केस फेल्स, तो केस फिर से फेल होने के बाद क्या करना है हमको, सो अवर yp इज व्हाट, फिर से एक बार हमको डेरिवेटिव लेना है। इस वही बोल रहा है कि अगर डेरिवेटिव भी 0 हो गया पहला, तो दूसरा डेरिवेटिव लो। तो एक्स स्क्वायर किया मैंने, एक्स स्क्वायर, इसका 2d का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ये माइनस 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और e रेज टू एक्स एज इट इज। दिस इज योर आंसर, बिकॉज देयर इज नो d टू रिप्लेस a। अभी d नहीं है डिनोमिनेटर में, तो कहाँ पे क्या रिप्लेस करेंगे उसकी जगह, नहीं है, तो रिप्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं हमको। सो दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? एनी डाउट? ओके, तो इस केस में हमने फाइनली क्या देखा, देखो जहां पे डी है वहां पे ए रिप्लेस करना है, अगर फाई ऑफ ए 0 हो गया तो डेरिवेटिव लेना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और डेरिवेटिव लेने के बाद जो मिलता है उसमें डी के जगह पे ए रिप्लेस करना है। अगर फिर से केस फेल हो गया तो फिर से डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, एक्स स्क्वायर ने मल्टीप्लाई करना है, और डी के जगह पे ए रिप्लेस करना है, और फिर से 0 हो गया तो ये करते जाना है आपको जब तक आंसर आपको नहीं मिलता, जब तक डिनोमिनेटर नॉन जीरो मिलता है, मिलता नहीं, तो तब तक ये आपको करते रहना है। ओके, सो हियर सी आई हैव गेट 2 विच इज नॉन जीरो, ये डिनोमिनेटर में 2 मिल गया, ये नॉन जीरो है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा प्रोसीजर, और यहाँ पे डी भी नहीं है रिप्लेस करने के लिए, इसलिए मैं स्टॉप कर रहा हूँ। अगर डी होता तो मैं वन वन रिप्लेस कर डालता वहां पे डी के जगह पे। गॉट इट? एनी डाउट इन दिस केस? हमको थोड़ा सा और देखना है यहाँ पे, ये केस में एक दो स्पेशल केसेस है, जिसके ऊपर दे शुड आस्क द क्वेश्चन। ओके, so if you have a doubt then we just clear it। okay, so I think you don't have any doubt, so let us move forward। तो एक और एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, और देन आई जस्ट मूव टू द स्पेशल केसेस। ओके, सपोज एग्जांपल लिया मैंने डी स्क्वायर, डी क्यूब का लेते, चलो अभी डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर plus 2d minus 1 into y is equal to e raised to, suppose it is 3x। ओके, ऐसा एग्जांपल है, तो यहाँ पे yp क्या हो जाएगा, योर yp इज सिंपली 1 अपॉन d cube minus 3d square plus 2d minus 1। randomly you can take any phi of d। okay, but if you are interested to find out the complementary function, okay, then think about that, because we have to find the roots of this equation। अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल का प्रैक्टिस करना है तो आप कुछ भी ले सकते हो फाई ऑफ डी, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, जहां पे डी है वहां पे क्या रिप्लेस करना है हमको, रिप्लेस डी बाय 3, बिकॉज योर ए इज नथिंग बट 3 हियर। ओके, सो हियर a is equal to 3, वी आर रिप्लेसिंग d by 3, जहां पे d दिख रहा है डिनोमिनेटर में वहां पे मैं 3 रिप्लेस करने वाला हूँ अभी। सो इट इज 1 अपॉन व्हाट आई गेट, 1 अपॉन d क्यूब मीन्स 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू ई रेज टू 3x, और खाली ये कैलकुलेशन करना है, वॉट एवर आई गेट दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो इट इज 1 अपॉन, okay, tell me the cube of
3. What is the cube of 3? Yes, it is 27. Okay, minus 3 as it is. 3 square is 9. 9 into 3. Again, it is 27, I think. Okay, plus 2 into 3 is 6. Minus 1 e raised to 3x. Okay, so plus 10, 27 minus 27 get cancelled, and 6 minus 1 is 5. So your final answer is here. It is 1 by 5 e raised to 3x. That is complementary. Sorry, that is particular integral. If you understand this. Okay, तो ये तो हो गया आपका y p. अगर 2 raised to x, if my fx is 2 raised to x, then what? If know that this is a special case. So if fx is equal to a raised to x हुआ, e raised to x का तो समझ गया sir, but how I can find out the particular integral if fx is of this form a raised to x. A raised to x means अभी ये 2 raised to x हुआ, 3 raised to x, 4 raised to x. अगर ऐसा fx हुआ तो क्या करेंगे? Okay, then we have also the solution for that. हमारे पास उसके लिए भी solution है. तो अभी मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ. देखो y अगर हमने लिया a raised to x, टेक log on both side, log y हमको क्या मिल जाएगा? log of a raised to x मिल जाएगा. ओके, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x आगे आ जाएगा, log a मिल जाएगा. ये log की प्रॉपर्टीज, दिस इज विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ log. ओके, एंड नाउ दिस इज nothing but if see if uh, log y is equal to x, then y is equal to e raised to x. This is the definition of logarithm. Okay, if log y is equal to x, then क्यों नहीं तो ऐसे लिखो, x और y में अगर confusion है तो if log m is equal to n, then m is equal to e raised to n. तो ये जो इधर का जो पार्ट है वो n e के पावर में चला जाएगा अगर हमको ये log निकालना है. ओके, तो मुझे ये लॉग नहीं चाहिए, मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? सो योर y इज नथिंग बट e रेज टू x into log of a. Got it? Why? See this from that 1 and 2. This is your 1 and this is your 2. So y is equal to a raised to x, y is also e raised to x log a. तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि a raised to x should be what? e raised to x into log of a. Got it? तो ये मुझे मिल गया a raised to x का वैल्यू. तो आप a raised to x लिखो या e raised to x log a लिखो, बोथ आर द सेम थिंग. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही मिलेगा. ओके, तो इसका यूज करना है हमको खाली. सो इफ यू यूज दिस यू कैन सिंपली फाइंड आउट द solution because we have the case for e raised to ax, we don't have the case for a raised to x. तो ये जो a है, a जो है ये, तो हमको e के पावर में लेके जाना है. Okay, so if we just convert that a, or if we shift that a into the power of e, then we can easily use the case, otherwise we don't. Okay, so हमको ये मिल गया. तो यहाँ पे yp जो है हमारा, yp is 1 upon phi of d into a raised to x. तो ये हो जाएगा 1 upon phi of d. अभी यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हम, हाँ, e raised to का पावर नहीं है, a raised to x है, so we cannot do the replacement. Once if I get the power of e, then and then we can replace it. तो a raised to x की जगह पे मैं ये वैल्यू डालने वाला हूँ अभी, e raised to x into log of a. ओके, और ये जो x छोड़ के जो है ये आपका ये पूरा a है अभी, तो ये d के जगह पे आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं अभी? यू कैन रिप्लेस d by log a. So this is simply what? This is simply 1 upon phi of log a into e raised to x log a.
But what is e raised to x log a? It is a raised to x. So this is simply 1 upon phi of log a into a raised to x. ये खाली रिप्लेसमेंट के लिए लिया था हमने, वो रीसब्स्टिट्यूट कर दिया. अगेन प्रोवाइडेड दैट ये तो जीरो नहीं होगा डेफिनेटली, बट लिख लेते फाई ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो. अगर जीरो हुआ तो आपको मालूम है क्या करना है, वो डेरिवेटिव लेना है, केस फेल हो जाएगा, डेरिवेटिव लेना है, एक्स ने मल्टीप्लाई करना है और आगे जाना. ठीक है, तो ऐसे आपको ये करना है. लेट अस सी द एग्जांपल फॉर दैट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. तो अगर एग्जांपल लिया मैंने, सो फाई ऑफ सॉरी डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 ले लेता हूँ अभी मैं. नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे लेता हूँ. डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, सपोज दैट. ओके, डोंट टेक 1 रेस टू एक्स. ओके, 1 रेस टू एक्स लॉग 1 जीरो हो जाएगा. 2 रेस टू एक्स, 1 रेस टू एनीथिंग इज 1, ऐसे भी होता है, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा. सो बेटर वे टेक 2 रेस टू एक्स और whatever the example gives us. Okay, तो अभी yp क्या मिलेगा यहाँ पे देखो. सो योर yp इज सिंपली इट इज 1 upon phi of d, means write down the phi of d instead of actually it is d square plus 1 into 2 raised to x. अभी ये 2 raised to x है जो है, ये e के पावर में कैसे लिखेंगे आप, e raised to x into log of 2. am I right? Like this, that see we have seen previously ऐसे. ओके, तो ये तो मिल गया. अभी यहाँ पे 2 रेस टू एक्स है, यहाँ पे ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 ऐसे. तो जहां पे अभी d है वहां पे हम log 2 रिप्लेस करेंगे. सो दिस इज सिंपली व्हाट 1 अपॉन log of 2 bracket square plus 1 e raised to x log of a, or x log of a is nothing but simply what a raised to x. So this is equal to what 1 upon log of 2 bracket square plus 1 into 2 raised to x. That's it. This is your yp. ये हो गया आपका आंसर. ओके, जहां पे d है वहां पे आपको log a रिप्लेस करना है. दिस इज log 2. समझ में आया? एनी डाउट इन दिस स्पेशल केस? this case comes under the first case. Okay, if you have any doubt you can ask. Okay, so another second point that I want to explain you, second note, if your fx is constant say k, अगर आपका fx constant हुआ, फंक्शन ही नहीं है, खाली कांस्टेंट है, एक्स ही नहीं है, तो क्या करेंगे? इट इज वेरी सिंपल. देन ये तो सबसे सिंपल केस है इस पूरे यूनिट में. तो yp क्या होगा देखो, आपका yp इज 1 अपॉन phi ऑफ d इंटू fx इज नथिंग बट यूर k. अभी fx जो है हमारा k है, तो 1 अपॉन phi ऑफ d इंटू k ऐसा हो जाएगा. तो देखो मुझे एक बताओ कि e रेस टू 0x का वैल्यू क्या होगा? इट इज डेफिनेटली 1. ओके, तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, सो दिस इज 1 अपॉन phi ऑफ d into k e raised to 0x. Then what happen? If I take this k into e raised to 0x, nothing will change. e raised to 0 is 1. तो ये k constant है, take it outside, बाहर ले सकते हैं. This is 1 upon phi of d into e raised to 0x. Now replace d by 0. a means 0 है ना आपका, अभी केस पहला केस यूज कर रहे हैं हम, तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका? सो दिस इज इक्वल टू k इंटू 1 अपॉन phi ऑफ 0 इंटू e raised to x, e raised to 0x. e raised to 0x मीन्स 1 हो जाता है, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, खाली हमने क्यों लिया है ये. सो वी हैव टेकन इट फॉर ओनली
replace the d, that's it. So k into 1 upon phi of 0, again provided that this phi of 0 never be 0. If it is 0, then you know what to do. So you just have to take the derivative, multiply by x, then replace d by 0. Okay, if case fails, then you know what we have to do. Okay, तो ये तो हो गया पहला केस. तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, so that you can understand how to use this and where actually you have to use. Okay, for example, suppose we have d square plus 4 into y is equal to suppose 9. ये कांस्टेंट है, यहाँ पे x दिख ही नहीं रहा है मुझे इस साइड में, fx जो है. सो हियर fx इज इक्वल टू 9, कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है. तो yp क्या होगा आपका? सो योर yp इज सिंपली व्हाट? yp इज 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 9. तो 9 जो है तो वो ऐसा लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने वो पर्टिकुलरली बताया, 9 ई रेस टू 0x लिख सकते हैं. तो 9 तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट तो बाहर ही लेते हैं हम, मैट्रिक्स में हो, डेरिवेटिव में हो, इंटीग्रेशन में हो, तो यहाँ पे क्यों अंदर रखना है, टेक इट आउटसाइड. So this is 9 actually. Okay, so 9 outside, constant outside, 1 upon d square plus 4 into e raised to 0x. Now replace d by 0 here. So it is simply 9 into 1 upon 0 square plus 4 into 1. नहीं लिखा तो भी चलेगा. E raised to 0 is 1. E raised to 0x is 1. Okay, we just have taken that e raised to 0 for our replacement of the value of t. Okay, so your final answer should be what? It is 9 by 4. This is your yp. This is the answer. Got it? Any doubt? Okay, so आई थिंक ये पूरा केस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे. इसके अलावा इस केस में और कुछ नहीं है. It is very simple case and hope you understand this case. Okay, so if you have a doubt, then you can ask in the first case. Okay, so otherwise we will move to the second case. Second case is also very simple. So after completing all the cases, we will discuss common examples on the all cases, so that we can use multiple cases in single example. Okay, so let us take the case number 2. What is case number 2 actually? अभी देखो, पहले केस में आपका fx था e raised to ax इस फॉर्म का. ओके, अभी आपका fx कैसा है देखो. so your fx is, it is sin ax plus b और cos ax plus b. ओके, अगर आपका fx ऐसा हुआ तो क्या करना है? Okay, so if your fx is sin ax plus b or cos ax plus b, then what to do for this? Okay, तो यहाँ पे अभी आपको LD कंसीडर करना है. सो yp इज इक्वल टू, यहाँ पे भी केस फेल हो सकता है, इस केस में भी. हाँ, दिस इज 1 अपॉन फाई ऑफ d इंटू fx. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ d इंटू fx इज नथिंग बट, साइन लिया तो भी चलेगा, कॉस लिया तो भी चलेगा, दोनों के लिए आंसर सेम होगा आपका. फिलहाल मैं साइन लेता हूँ, साइन ax प्लस b. यहाँ पे मैं d के जगह पे d स्क्वायर लेता हूँ. फाई ऑफ d में से सिर्फ d स्क्वायर लेना है आपको. नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू रिप्लेस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर. रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस a स्क्वायर. तो ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा? सो योर yp इज सिंपली व्हाट? 1 अपॉन phi of minus a square into sine of ax plus b, provided that
this phi of minus a square should not be 0. अगर ये 0 हो गया तो हमको डेरिवेटिव लेना है. ओके, सो इफ, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं वो एग्जांपल फिर से हम देखेंगे उसका. सो इफ phi of minus a square is equal to 0, देन क्या हो जाएगा आपका केस फेल्स. केस फेल हो जाएगा. अगर केस फेल हो गया तो क्या करना है आपको, yp is equal to 1 upon phi dash of d square into sin of ax plus b, ऐसा लिखना है. ओके, sin of ax plus b एंड नाउ रिप्लेस, और डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे x ने मल्टीप्लाई करना है, multiply by x. Okay, so now replace again here d square by minus a square. सर अगर d square नहीं मिला डिनोमिनेटर में तो क्या करना है, क्योंकि डेरिवेटिव लेने के बाद पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि डेरिवेटिव d square का टर्म था और उसका डेरिवेटिव लेने के बाद क्या हो गया, d हो गया, तो d square तो गायब हो जाएगा. तो d square अगर नहीं हुआ तो रिप्लेसमेंट कैसे करना है, that we will discuss in the example itself. ओके, एग्जाम्पल में देखेंगे. प्रोवाइडेड दैट phi dash ऑफ d स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या रिप्लेसमेंट आ जाएगा फिर, सो दिस इज yp इज इक्वल टू 1 अपॉन, सॉरी x अपॉन, डेरिवेटिव लिया है, x अपॉन phi dash ऑफ माइनस a स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax प्लस b. सेम कॉस के लिए भी होगा. It is same for cos ax plus b. Nothing will change. Only replace sin by cos. दोनों functions के लिए सेम ही केस है. Okay. So again provided that here phi dash of minus a square should not be 0. अगर 0 हुआ तो आपको क्या करना है मालूम है. फिर से take the derivative, then replace d square by minus a square. If d square is there, if it is not, then what to do देखेंगे. अभी एग्जांपल लेता हूं. एंड सिमिलरली फॉर cos also same case, similarly we can use it for fx is equal to cos ax plus b. Always remember this. Similarly we can use it for cos ax plus b. okay, तो अभी एग्जांपल में देखो क्या होता है. एग्जांपल लेते हैं. d स्क्वायर plus 4 into y is equal to sine of 2x. See, b should be there or it should not be there. ये जो ax plus b लिखा है हमने, हर बार b होगा वहां पे एग्जाम्पल में, ऐसा नहीं है. So it may not be there. Most of the time that b should not be in the example. Only sine ax is there. But in general we are taking sine ax plus b. क्योंकि b का रोल ही नहीं है सॉल्यूशन में. सो b डजंट अफेक्ट द सॉल्यूशन. वो रहा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, नहीं रहा तो भी कुछ दिक्कत नहीं है. वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट b. क्योंकि इफ यू ऑब्जर्व द सॉल्यूशन, इफ यू ऑब्जर्व द केस, देयर इज nothing we will change with the help of b. Okay, the role of b is 0 over there. So we just keep as it is. If it is there, if it is not, then we don't have any problem. Okay, we are interested in only the value of a here. So what is yp? For this, yp is equal to 1 upon d square plus 4 into sine of 2x. What is a? a is equal to 2. टेक इट स्क्वायर, इसका आपको स्क्वायर लेना है. स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और उसको माइनस ने मल्टीप्लाई करना है. माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू -4 एंड देन रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -4. गॉट इट? नहीं तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं सर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मीन्स वो स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा. No, it is not like that. Just pick up a,
टेक इट स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस, जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे किया है। देखो मैंने पहले तो a लिया, a इज इक्वल टू 2 है यहाँ पे, उसका स्क्वायर किया और देन आई जस्ट मल्टीप्लाइड बाय माइनस, एंड नाउ आई एम रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाय -4 विच इज माइनस ए स्क्वायर, कि जो ये जो है आपका ये माइनस ए स्क्वायर है, गॉट इट। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट देखो अभी, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन रिप्लेसमेंट है -4, डी स्क्वायर के जगह पे -4 डालना है और +4 इज देयर इनटू साइन ऑफ 2x, बट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, केस फेल हो रही है यहाँ पे, देखो -4 + 4 0 हो जाएगा, सो हियर pi of minus a square becomes 0, केस फेल्स, केस फेल हो रहा है। तो क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है किसका, फाई ऑफ डी का, सो टेक द डेरिवेटिव, सो योर yp इज नथिंग बट सिंपली व्हाट, yp इज नथिंग बट, डेरिवेटिव लेते हैं x ने मल्टीप्लाई करना है, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 2d इंटू साइन ऑफ 2x। अभी डी स्क्वायर नहीं है डिनोमिनेटर में, डी स्क्वायर नहीं है तो हम रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, सो हाउ आई गेट द डी स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर। तो एक अलग जो फॉर्मेट है इस एग्जांपल का, मैं दोनों बताता हूँ आपको, सो व्हाट एवर द सिंपलेस्ट फॉर यू यू कैन यूज दैट, ओके। तो एक अलग जो पहला केस देखते हैं हम यहाँ पे, पहला जो सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, दो टाइप के सॉल्यूशन यहाँ पे आप आगे फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव है, देखो डेरिवेटिव का अगर आप रेसिप्रोकल करते हो तो आपको इंटीग्रेशन मिल जाता है, because derivative and integrations are reciprocal of each other, they are inverse processes of each other, so we can do here like this, it is 1 upon x by 2 into 1 upon d sin of 2x, आपको ऐसे मिल जाएगा। और 1 upon d means what, इंटीग्रेशन किसका, sin 2x का, so simply this is what x by 2 integration of sin 2x into dx, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है अगर आप इंटीग्रेशन में इंटरेस्ट हो तो, अगर आप यू जस्ट हेट द इंटीग्रेशन देन देयर इज अनदर मेथड आल्सो टू फाइंड आउट, ओके डोंट टेक अटेंशन। और साइन का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा, इट इज सिंपली आई थिंक इट इज माइनस cos 2x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x, you know, I think it is minus cos 2x divided by 2 composite function. So simply I get minus x by 4 into cos of 2x. cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos होगा, तो दिस इज योर yp, ओके। ये एक फॉर्म हो गया आपका आंसर का। और दूसरे तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं आप, ये देखो, और अदरवाइज वी कैन डू लाइक दिस, तो यहाँ तक आए हम अभी, yp इज इक्वल टू x अपॉन 2d मिला है हमको इंटू साइन ऑफ 2x, तो डिनोमिनेटर में d नहीं है, d स्क्वायर चाहिए, d खाली d है तो d ने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, x अपॉन 2d इंटू d डिवाइडेड बाय d, गॉट इट, इंटू साइन 2x, सॉल्यूशन में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, डी कैंसिल हो जाएगा, ओरिजिनल स्टेप मिल जाएगी, ओके। दिस इज जस्ट द एडजस्टमेंट, नोट दिस स्टेप, okay, this the adjustment I have made only here, so to get the d square in the denominator, so what I get here then, x into d as it is sine of 2x divided by 2d square हो गया अभी, okay, it is divided by 2d square, d into d is d square हो गया। अभी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, d के जगह पे क्या रिप्लेस करना है आपको, डी स्क्वायर रिप्लेस करना है, ए माइनस ए स्क्वायर, आपका a जो है ये 2 है, उसका स्क्वायर लिया 4 मिल गया, उसको माइनस ने मल्टीप्लाई किया -4 मिला, नाउ रिप्लेस डी स्क्वायर बाय -4, ओके। सो देन व्हाट आई गेट हियर, इट इज x d of sin 2x
divided by 2 into minus 4. Got it? This is a replacement. Replace d square by minus a square. And therefore, this is equal to x. D into d means what? What is d? D means d by dx. Derivative है. Operator d. So derivative किसका? Sin 2x का. तो इसका derivative आ जाएगा आपका into 2 cos of 2x. पता है आपको. Divided by minus 8 हो गया. 2 ने divide कर लेना है. Is 4 and your final answer is what? Yp is equal to minus x by 4 into cos of 2x. See, in both we get the same, minus x by 4 cos of 2x, and here also it is minus x by 4 cos of 2x. So whichever the method you are using, you will get the same answer. But just try to understand, when d square is not there in the denominator, then we just try to find out the d square by dividing and multiplying by d in the numerator and denominator, or otherwise if 1 upon d is there only, then we just convert 1 upon d into the integration. Okay, so whichever is the simplest for you, you can use that. Any doubt? तो इसका सिमिलर जो केस है, if you have any doubt you can ask. Okay, so इसका जो सिमिलर केस है, ये थर्ड केस है, और थर्ड केस तो बहुत इजी है थर्ड भी. तो केस नंबर 3, केस नंबर 3 में फंक्शन अगर आपका क्या हुआ, साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी और कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स प्लस बी, everything is same, just instead of minus a square we have to replace d square by plus a square. Everything is same. Okay, so your yp is here, yp is 1 upon phi of d square into sine hyperbolic, hyperbolic function पता है आपको, ax plus b. Okay, so replace here what? Replace plus d square by plus a square. See, in the previous case we are replacing d square by minus a square. See here, we are replacing d square by minus a square. Okay, series. But in this case we are replacing d square by plus a square, and that is the only change. There is no another change actually in this case. Okay, everything is same. You can also take the same example as that before. Just you have to replace d square by plus a square. Okay, so now here this is equal to 1 upon phi of a square plus a square sine hyperbolic ax plus b. Again, case of failure is there, provided that phi of a square should not be 0. So if phi of a square is 0, then what I have? Case fails. Okay, and if case fails, then what we have to do? We just have to take the derivative. So this is 1 upon phi dash of a square then, and multiply by x in the numerator, and it is sine hyperbolic ax plus b. Okay, again here provided that phi dash of a square should not be 0. So if it is 0, then you know how to find out the solution, how to find out the particular integral for that. Okay, so one more important thing is that we can also same formula for cos hyperbolic x plus b also, and similarly we can use the above formula. Similarly we can use the above formula or above result for fx is equal to, because they are same, cos hyperbolic x plus b. Okay, so
In this way, we have today we have discussed the three cases. I think there is no need to take the example for this. You just have to replace sine 2x by sine hyperbolic 2x. You will get the answer. Now, in this case will not fail for this example. Okay, and for some example, if d square minus 4 is there, then case fail definitely, because 4 minus 4 becomes 0, and then you just have to take the derivative. Okay. तो ये सब हम डिटेल में जो कॉमन एग्जांपल्स है वहां पे देखने वाले हैं, बट अप टू दिस पॉइंट यू हैव seen what is the particular integral, how many methods are there to solve the or to find out the particular integral. Okay, there are three methods total: shortcut method, method of variation of parameter, and general method. And now today we have started the shortcut method. In that shortcut method, depending on the nature of function actually which is in the right hand side of the differential equation, we have different cases to find out the particular integral. And among all that cases, today we have discussed three. Okay, so the first case e raised to x. In the first case, we just replace d by a to find out the yp. In the second case, we are replacing d square by a square minus a square if the function is sine ax plus b or cos ax plus b. And in the third case, we are replacing d square by plus a square if the function is sine hyperbolic x plus b or cos hyperbolic x plus b. If you have any doubt regarding this, you can please ask. Okay, so otherwise we'll conclude the today's session, and tomorrow we'll discuss the another cases for the shortcut method. There are another three cases for shortcut method, and then we'll discuss the common examples on that. Okay, is there any problem? Okay, so we will conclude the tomorrow's session, today's session. Tomorrow we'll discuss the further part of this. Thank you.